السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا جن کی گواہی زمین پر چلنے والے ہر قسم کے جاندار نے دی۔ کبھی اونٹ نے بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے دکھ کی داستان سنائی تو کبھی ایک بکری نے بغیر دودھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے دودھ دینا شروع کر دیا۔ ایک بھیڑیا جس نے تبلیغ اسلام کیا اور ایک گوہ جس نے آپ کی نبوت کا کھلا اعلان کیا، یہاں تک کہ ایک پکی ہوئی بکری آپ کے حکم سے پھر سے زندہ ہو گئی۔ ان تمام معجزات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جانور بھی آپ کی سچائی اور آپ کے مرتبے کو جانتے تھے۔ ان تمام واقعات کو اب میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرتے تھے اور آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ یہ حدیث کی روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں پر حملہ کر کے کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانکاری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ بہت خطرناک ہے، یہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پھر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنے سر اور گردن کو جھکا دیا۔ آپ نے اونٹ کے سر اور گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور وہ اونٹ بالکل نرم اور حکم کو ماننے لگا۔ پھر آپ نے اس اونٹ کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کو نہیں مانتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور اونٹ بارگاہ رسالت میں کس طرح فریاد کرنے لگا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا جو زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ اونٹ کو تسلی ہوئی اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا مالک ایک انصاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور فرمایا، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے اور یہ تمہارے ماتحت ہیں، اسی لیے تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی کہ تو اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو سناتے ہیں کہ بے دودھ کی بکری نے دودھ کیسے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان لڑکا تھا اور مکے کے کافروں کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے لڑکے، اگر تمہاری بکریوں کے تھن میں دودھ ہو تو ہمیں بھی پلا دو۔ میں نے کہا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ میں ان کا چرواہا ہوں اور امانت کے طور پر ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی لیے بنا مالک کی اجازت کے دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ میں اسے لے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا تو اچانک تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کا برتن لیا اور اس کا دودھ دھوا
पहले आपने खुद पिया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पिलाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद फिर मुझको भी पिलाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन पर हाथ मारते हुए फरमाया, ऐ थन तू सिमट जा, तो वह फौरन सिमट कर सूख गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस मौजज़े को देखकर बहुत ही मुताशिर हुआ और मैंने अर्ज किया, आप पर जो आसमान से कलाम नाजिल हुआ है मुझे भी सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर सीखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की सलाहियत है। चुनाचे मैंने आपकी मुबारक ज़बान से सुनकर कुरान मजीद की 70 सूरतें याद कर ली। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि मेरे इस्लाम लाने में इस मौजज़े का बहुत बड़ा हाथ है। अब नाज़रीन, हम आपको उस भेड़िए का वाक़या सुनाते हैं जिसने इस्लाम का प्रचार किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया, लेकिन बकरियों के चरवाहे ने भेड़िए पर हमला कर दिया और उस बकरी को उससे छीन लिया। भेड़िया भागकर एक टीले पर बैठ गया और कहने लगा, ऐ चरवाहे, अल्लाह ताला ने मुझको यह रिज़्क़ दिया था, मगर तूने मुझसे इसे छीन लिया। चरवाहे ने यह सुनकर कहा, खुदा की कसम, मैंने आज तक इससे ज़्यादा हैरत अंगेज और ताज्जुब कर देने वाला मंजर नहीं देखा कि एक भेड़िया मुझसे अरबी जुबान में बात कर रहा है। भेड़िया कहने लगा, ऐ चरवाहे, इससे भी अजीब बात यह है कि तू यहाँ बकरियाँ चरा रहा है और तू उस नबी को छोड़े और मुंह मोड़े हुए बैठा है जिनसे ज़्यादा बुजुर्ग और बुलंद मर्तबा का कोई नबी नहीं। इस वक्त जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं और जन्नत के लोग उस नबी के साथियों की बहादुरी देख रहे हैं। तुम्हारे और उस नबी के बीच बस एक घाटी का फासला है। काश तू भी उस नबी की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के लश्कर का एक सिपाही बन जाता। चरवाहे ने इस गुफ्तगू से मुताशिर होकर कहा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िए ने कहा, तेरे लौटने तक मैं खुद तेरी बकरियों की निगहबानी करूंगा। चुनाचे चरवाहे ने अपनी बकरियों को भेड़िए के हवाले कर दिया और खुद बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। और वाकई जब वह वहां पहुंचा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को जिहाद में मशगूल देखा। फिर चरवाहे ने भेड़िए की बात का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाओ, अपनी बकरियों को सलामत पाओगे। चुनाचे जब चरवाहा लौटा तो उसने देखा कि भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है और उसकी कोई भी बकरी गायब नहीं थी। चरवाहे ने खुश होकर भेड़िए के लिए एक बकरी ज़िबह कर दी जिसे भेड़िया खाकर चला गया। नाजरीन, इसी तरह एक गोह का वाक़या भी आपको सुनाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बनी सुलैम का एक अरावी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी महफिल के पास से गुजरा। उस वक्त आप अपने साथियों के साथ मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। यह अरावी जंगल से एक गोह पकड़कर ला रहा था। अरबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों से पूछा, यह कौन है? लोगों ने जवाब दिया, यह अल्लाह के नबी हैं। अरबी यह सुनकर आपकी तरफ ध्यान देते हुए कहा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम कि मैं उस वक्त तक आप पर ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मेरी यह गोह आपकी नबूवत पर ईमान ना लाए। यह कहकर उसने गोह को आपके सामने डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोह को पुकारा तो गोह ने तेज आवाज़ में कहा, लब्बैक व शादैक, यानी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। यह आवाज़ इतनी बुलंद थी कि तमाम हजरातों ने सुन लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा माबूद कौन है? गोह ने जवाब दिया, मेरा माबूद वह है जिसका अर्श आसमान में है, जिसकी बादशाही ज़मीन में है, जिसकी रहमत जन्नत में है और जिसका अजाब जहन्नम में है। फिर आपने पूछा, ए गोह, यह बता कि मैं कौन हूँ? गोह ने बुलंद आवाज़ में कहा, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और खातिमुन नबी हैं। जिसने आपको सच्चा माना वह कामयाब हो गया और जिसने आपको झुटलाया वह नामुराद हो गया। यह मंजर देखकर अराबी इस कदर मुताशिर हुआ कि फ़ौरन ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आपके पास आया था तो आपको नापसंद करता था, मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप मेरे नज़दीक मेरी औलाद बल्कि मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुझे ऐसे दीन की राह दिखाई जो हमेशा ताकतवर रहेगा और कभी हारने वाला नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तालीम दी। अरबी ने यह कुरान की सूरतें सुनकर कहा, मैंने बड़े बड़े अच्छी तरह से बोलने वाले लंबी और छोटी हर तरह की बातें सुनी हैं, मगर खुदा की कसम मैंने आज तक इससे बढ़कर और इससे बेहतर कोई बात नहीं सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि यह बनी सुलैम कबीले का एक गरीब इंसान है, तुम लोग इसकी मदद करो। यह सुनकर बहुत से लोगों ने उसे बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे 10 गाविन ऊँटनियाँ भी दी। वह सारा सामान और माल साथ लेकर जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि उसकी कौम बनी सुलैम के 1000 सवार नेजे और तलवार लिए हुए आ रहे हैं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और किस इरादे से? सवारों ने जवाब दिया, हम उस शख्स से लड़ने जा रहे हैं जो यह दावा करता है कि वह नबी है और हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। यह सुनकर उस आदमी ने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ा और सारा वाकया उन्हें सुनाया। जब सवारों ने उसकी जबान से यह ईमान अफरोज बातें सुनी तो सबने एक साथ कलमा पढ़ा। फिर वे सब बारगाह नबूवत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, यहाँ तक कि आपकी चादर भी आपके मुबारक जिस्म से गिर पड़ी। यह लोग कलमा पढ़ते हुए अपनी अपनी सवारियों से उतर गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें जो हुक्म देंगे हम उसकी पूरी तरह से तामील करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे जिहाद करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बताया कि उस जमाने में बनी सुलैम के अलावा कोई ऐसा कबीला नहीं था जिसके एक साथ 1000 लोग मुसलमान हुए हों। इस हदीस को तबरीन, बहकी, हकीम और इब्ने अदी जैसे बड़े बड़े मुहस्सिन ने बयान किया है। इस तरह के सैकड़ों मौजूदों में से कुछ वाक़े इस बात की सूरत से भी ज्यादा साफ दलीलें हैं, साफ सबूत है कि जमीन के तमाम जानवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं और पहचानते और मानते भी हैं कि आप नबी खातिमुल अंबिया हैं और यह सब आपके तारीफ करने वाले हैं और आपके मुकद्दस इस्लाम की दावत का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। यह सब आपके हुक्म और नसीहत को मानते हुए आपके हर हुक्म को अपने लिए ईमान का हिस्सा मानते हैं और अमल करने के लिए जरूरी समझते हैं। वे आपकी इज्जत और सम्मान को अपने लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। काश इस जमाने के मुसलमान जो सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ते हैं इन बेजुबान जानवरों से रसूल की ताजीम और एहतियाम सीखते हैं और दिल से इस रोशन हकीकत पर ध्यान देते हैं। अब आइए आपको आखिर में ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या सुनाते हैं कि कैसे एक पकी हुई बकरी जिंदा हो गई। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बकरी ज़िबाह करके उसका गोश्त पकाया और रोटियों का चूरा करके शरीत यानी रोटी और गोश्त को मिलाकर तैयार किया, जिसे लेकर वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खाने को खाया। जब सब लोगों ने खा लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हड्डियों को एक बर्तन में जमा किया और उन हड्डियों पर अपना मुबारक हाथ रखकर कुछ दुआ के कलमात फरमाए। अल्लाह के हुक्म से यह मौजज़ा जाहिर हुआ कि वह बकरी जिंदा हो गई और वह अपनी दुम हिलाने लगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, तुम अपनी बकरी वापस अपने घर ले जाओ। चुनाचे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस बकरी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उनकी बीबी ने हैरान होकर पूछा, यह बकरी कहाँ से आई है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमने अपनी इस बकरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िबाह किया था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने इस बकरी को जिंदा कर दिया। यह सुनकर उनकी बीवी ने तेज आवाज में कलमा शहादत पढ़ा। इस हदीस को जलीलुल कद्र मुहद्दिस अबू नुऐम ने रिवायत किया है और मशहूर हाफिज मोहम्मद बिन अल मुंजिर ने भी किताबुल अज़ाबिल गराइब में जिक्र किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की इस वीडियो में
بس اتنا ہی. آپ کو کیسی لگی ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.